السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم آج شو کے آغاز میں ہی پی ٹی آئی کے معزز رہنما محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے سیدھا آپ کو ادھر ہی لیے چلتے ہیں. سب معزز بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بے شک نہ جواب دیں، میں معزز صحافیوں کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں آپ خود ان کو دعوت دیتے ہیں، میں نے کتنی بار عرض کیا ہے، ہمارے انتہائی سینئر جرنلسٹ. چھوڑ دیجئے اس بات کو، ہمیں پہلے ہی بہت سے گمبھیر مسائل نے گھیرا ہوا ہے. آپ اس مسئلے کو آج رہنے ہی دیجئے. چلو میں اگلی باری آ جانا پھر. بیٹھو بیٹھو، اگلی دفعہ انہیں کہڑا تاڑے ہاستے صدقے دی سری لے کے آنی. اچھا شاہ جی یہ فرمائیے، جو آج قومی اسمبلی کے باہر ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اس پہ تو اپنا رد عمل دے دیں. دیکھیے جنید میاں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میڈیا کے حوالے سے آج کل پاکستان تحریک انصاف پر برے دن آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا. چونکہ ہم نے صدقے کے طور پر ایک نیا ٹیلی ویژن سیٹ فقیر کو لے دیا ہے. شاہ جی صدقے میں تو بکرا ہوتا ہے. ہم نے صدقہ میڈیا کا دینا تھا، اپنے اس پوتے کا نہیں تھا دینا جس کے اب ماشاءاللہ 2 دانت نکل آئے ہیں. اب تو چمچ سے اسے کچھ کھلائیں تو دانت کھڑکتے بھی ہیں. جب ہم نے چھوٹا چمچ اس کے دانتوں پہ مارا تو ہمارے پوتے نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا دادا جان کیوں کھڑکا رہے ہیں ہمارے دانت؟ ہم پہ بے اعتباری ہے، ایسی دس جو دیتا ہے دندی نے. بلکہ ہمارے پوتے نے چمچ کی طرف دیکھ کے یہ گانا بھی گا دیا، دندیاں نہ کھڑکا سونیا سدھا منہ چار. یہ جو مراد سعید ہے، یقین مانیے یہ تو ایسا معصوم بچہ ہے، ایسا انوسنٹ ہے، ایسا بھولا بھالا ہے کہ جس دن قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں پہنچتا، یقین مانیے چھٹی نہیں کرتا، شریحن چھٹی نہیں کرتا، غلط بس پکڑ لیتا ہے. کبھی مری پہنچ جاتا ہے، کبھی لاہور آ جاتا ہے. یہاں اتر کے جب لاہور کے بس اڈے والے آواز لگا رہے ہوتے ہیں پنڈی والے پنڈی والے پنڈی والے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں پنڈی نہیں لاہور آ گیا. یہ تو اتنا معصوم بچہ ہے کہ ایک دفعہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں آ کر بیٹھ گیا. اجلاس جب ختم ہوا تو اسے معلوم پڑا کہ یہ قومی اسمبلی نہیں، یہ صوبائی اسمبلی ہے. یہ تو اتنا معصوم ہے کہ کئی دفعہ میٹرو بس میں بیٹھ کے یہ کہہ دیا کہ یہ بس بہت ہی پیاری ہے، کس نے بنائی ہے؟ وہ تو جب سواریوں نے بتایا کہ یہ میٹرو ہے شہباز شریف نے بنائی ہے تو پھر بیچارہ غصے سے لال پیلا بس سے نیچے اترا. شاہ جی موقع کیوں دے مارا پھر؟ وہ قصہ بھی سن لیجئے. معصوم 2-3 دن سے نہایا نہیں تھا، اسمبلی چلا آیا، مکھیوں نے پیچھا شروع کر دیا. ایک مکھی تو اس طرح تنگ کر رہی تھی جس طرح آج کل عمران خان کو مریم اورنگزیب تنگ کر رہی ہے. اس مکھی کا پیچھا کرتے کرتے انتقاماً جب یہ اسمبلی سے باہر نکلا تو وہ مکھی بد نصیبی سے ہمارے پیارے بھائی، ہمارے ساتھی، ہمارے بہت ہی چہیتے ایم این اے جاوید لطیف کی گردن پہ جا بیٹھی. اس میں نہ تو جاوید لطیف کا قصور ہے اور نہ ہی مراد سعید کا. جو ہی اس معصوم مراد سعید نے مکھی سے انتقام لینے کے لیے اس کی کمر پر اپنا مکہ رسید کیا تو اس کے مکے نے جاوید لطیف کی گردن کا 3 انچ بائی 2.5 انچ کا حصہ گھیر لیا. اس کا مطلب ہے کہ قصور نہ مراد سعید کا ہے نہ جاوید لطیف کا، مکھی کا ہوا. جی ہاں، اچھا آپ ٹھیک پہنچے. آپ ماشاءاللہ ایک سینئر، ایک سیزنڈ صحافی ہیں. نہیں سینئر وہ ہیں.
हाँ, हालात के और हुलिये के हवाले से तो यही सीनियर लगते हैं, चूंकि इतनी सीनियर चीज को ही इतना जंग लगता है। फिर भी मेरा ख्याल है कि मुराद सईद को थोड़ी सी एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए था। क्या एहतियात करते मुराद सईद? मुक्का मारने से पहले मक्खी को या जावेद लतीफ को कहते हिल्ली ना हिल्ली ना, ना हिल्ली ना हिल्ली, किधरे इधर उधर ना बच जावे। क्या करते एहतियात बता दीजिए? मक्खी के ऊपर रुई रख के फिर ऊपर मुक्का मारते। असल बात ये है कि आजकल आप सारे ही जोश में आए हुए हैं। पहले खान साहब ने वो फटीचर वाला इशू दे दिया कौम को, उसके बाद आज ये आ गया वाकया सामने। मेरा ख्याल है हम जो सदके में नया टेलीविजन सेट दे के आए हैं फकीर को, या वो सेट खराब था या फिर फकीर खराब था। बात तो आपने फिर वही शुरू कर दी। भाई खुदा के वास्ते कुछ रहम कीजिए। सारा मीडिया कई दिनों से सिर्फ एक ही बात को रगड़ता जा रहा है कि फटीचर क्यों कह दिया, फटीचर क्यों कह दिया। वो क्या शायर कहता है, जुबान क्या फिसली मेरे प्यारे इमरान की, मीडिया ने फटीचर का किस्सा बना लिया। ये फटीचर कह दिया उन्होंने, ये कोई इतनी अहम या बड़ी बात नहीं है। ये चूंकि इमरान खान के मुंह से निकला है, उसकी कायदाना सलाहियतों की वजह से ये फटीचर इतना मशहूर हो गया। देखिए पूरी दुनिया के ऊपर या मार्गरेट थीचर मशहूर हुई है या फिर इमरान का फटीचर मशहूर हुआ। जी फटीचर में हे डालनी है कि नहीं? अबे कमबख्त, मरियम औरंगजेब कहती है तो फौरन लिख लेते हो। साढ़े फटीचर वारी तेरी हे के पीछे हो जाती है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, याद माजी में जब हमने रेडियो को डिस्कस किया है, 2 बार डिस्कस किया है, तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा है कि जनाब आपने रेडियो का जिक्र तो किया है, टेप रिकॉर्डर जो था जिसमें ऑडियो कैसेट चला करती थी, आपने कहते हैं कि बहुत सारे एक पूरी जनरेशन है जिसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उसी दौर में गुजरा है जब वो टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल करते थे। उसका जिक्र आप बोल कर गए। नहीं तो करो ना, तुम बुजुर्गों बच्चों को बताओ कि क्या क्या होता है। बहुत सारी यादें हैं, मेरी तो बहुत सारी यादें हैं उसके साथ, टेप रिकॉर्डर के साथ। वाकई ये जो ऑडियो का मामला है, यानी कि टेप रिकॉर्डर और फिर अब तो सीडी और डीवीडी और ये वो आ गया, ये मेरा ख्याल है कि हमारे बचपन में टेप रिकॉर्डर नया नया आया था जी, और वो एक तवा रिकॉर्ड होता था। हाँ जी, बड़ा तवा। अच्छा, वो उसे पता नहीं क्या कहते थे, मुझे नहीं उसका पता। वो चिट्टा सा बहुत जल्दी तुम्हें चिट्टा ही लगता हो। वो काला स्याह होता था भाई, इसलिए तो उसे तवा कहते थे। वो जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता, हमने वो देखा हुआ है। वो तवा सा होता था ऐसे, उसके ऊपर ऐसे स्टिक सी एक लग जाती थी, उसके आगे सुई सी होती थी जो उसमें तुमने तवे वाला रिकॉर्डर जो है वो जागते हुए देखा है। हाँ जी। और मैंने यकीन करो कि ये जो टेप रिकॉर्डर वाला कल्चर है इसको जागते हुए देखा है। ये तवे पे अभी डिस्कस कर रहे हैं और कैमरे ऑन होते हैं तो मुदीर से छुन्ना सा लग जाता है, रणबीर कपूर से अपनी शक्ल मिला लेता है। तो हीरो नहीं, फिल्मों में काम मिल रहा तो बोला था यार, तो जरूरी नहीं होता कि हीरो को फिल्म में ही काम मिले, घर में काम मिल गया। तो ये जो टेप, वो जो है ना ये तवे वाली रिकॉर्डिंग, वो जा रही थी, वो हाथ से भी चला करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिजली पे भी चलना शुरू हो गया। अच्छा। उसके बाद आ गई टेप रिकॉर्डर और कैसेट। कैसेट के साथ बड़ी बड़ी हमारी प्यारी बातें वाबस्ता है, यादें वाबस्ता है। वो टेप रिकॉर्डर जो होती थी ना जी, उसके अंदर छोटा फीता सा चलता था, टेप, उसको भी बड़े मये मये से हमने बरता हुआ है। कभी उसमें पेंसिल डाल के ऐसे कमा के रिवाइंड करते थे, कभी उसको आगे करते थे। वैसे वो बटन से भी टेप रिकॉर्डर के अंदर कैसेट डाल के भी रिवाइंड और फॉरवर्ड हो जाती थी। अगर वो टूट जाती थी तो नील पॉलिश से जोड़ना। शुरू में टेप रिकॉर्डर सिर्फ उन घरों में होता था जिनका बड़ा बेटा दुबई गया होता। वाह 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 वाह, वाकई वो दुबई से वो टेप रिकॉर्डर लेके आते थे और फिर सारा महल्ला देखने भी आता था।
वो आ गई है टेप। अभी उधर से कपड़े इधर करेंगे ना तो फिर तुम्हें नजर आएगी। ठहर जाओ। हाँ, वो ये कौन सी किस कंपनी की, सोनी की है। इस तरह उसे देखने आते थे। अब मुंडे ने सऊदी अरब तो केसट से आवाज भर के भेजी है। ये भी कैसेट्स में आवाज होती थी। अक्सर जो प्रोग्राम होते थे जो उस वक्त के बड़े कॉमेडियन से, खासतौर पर मुझे याद है मोइन अख्तर मरहूम, उनकी अक्सर जो कॉमेडी थी हमने कैसेट्स के थ्रू ही सुनी थी। शौकी खान साहब। हाँ जी, शौकी खान साहब की केसटें बड़ी मशहूर होती थी। जैसे आजकल कहते हैं ना कि एल्बम निकला है गुलकार का नया, उस वक्त कहते थे कि कैसेट रिलीज हुई है। और कैसेट में एडवर्टाइजर्स के मैसेज भी हुआ करते थे। ये बंदा शोखा बाहर मंजी ते रख के बैठा हुआ टेप। हाँ जी, थैला ऐसी शोखी कर जाता है बाहर मंजी थी। हाँ हाँ, बल्कि जिस तरह आजकल बाहर दादा अपना पोतरा चौक के नहीं बैठा होता, उस तरह इसको मैंने टेप रिकॉर्डर चौक के बैठे हुए भी गली में देखा। और इतनी कंजूसी करते थे ऐसे लोग। कोई अगर आके कहता था ना यार हमें भी सुनाओ, कहते थे चल चल पहले ਉਹਦੇ सेल वीक ने, अगर सेल वीक है तो 4 बंदे सुनते आवाज कंज्यूम हो जाएगी। 4 बंदे। अच्छा, उसमें जो केस्टें रिलीज हुई है ना बहुत ज्यादा, वो मोइन अख्तर साहब और शौकी खान साहब में। शौकी खान साहब भी बहुत ज्यादा उनकी कॉमेडी केस्टें आई थी। उनके साथ कोई एक फीमेल आर्टिस्ट मुना खान, इन दोनों की बड़ी केस्टें रिलीज हुई थी। अच्छा, इस हवाले से मैंने ये भी सीन देखा हुआ है कि कोई पिंड का बंदा पिंड से निकला है तो उसने हाथ में टेप रखा बड़े टैके के साथ। जैसे आजकल मॉडर्न बंदे जर्मन शेफर्ड कुत्ता नहीं लेके फिरते, इस तरह पेंडू बंदे जो थे वो टेप रिकॉर्डर लेके फिरते। अगर कुत्ता पड़ जाता था तो कुत्ते की आवाज रिकॉर्ड की होती थी। आई नहीं मुझे मंडी आज जेड़ा बहु करते हैं। और अजीजी अगर सेल वीक हो जाते थे तो गाना अगर चल रहा होता था ना, वे पंतो मिनता तेरियां कोर दी मोनू गोल मोनू। सही बात है, लगता था कि किसी ने गुलूकार की संगी को उठाया। जी मैकेनिक के पास अगर बंदा टेप ले जाता था ना तो कहता था यार इसका हेड बैठ गया है। तो वो यही कहता था कि तुम रेडी से सस्ती केस्टें लगाते हो तो हेड ही बैठना है। अच्छा, थैला बेचारा जब भी कहता था कि हेड बैठ गया, कहता तेरा हेड भी तो बैठ गया। अच्छा सर, जब प्ले करते वक्त ना, क्योंकि रेड बटन साथ ही होता था रिकॉर्डिंग वाला, वो अक्सर दब जाता था। और जब गलती से दब जाता था तो वहां से रिकॉर्डिंग इरेज हो जाती थी कैसेट्स में से। गाना खराब हो जाता था। गुलूकार माइंड करता था कि फिटे में तेरा मेरे यारी तेन मौत पैनी। अच्छा, वो बड़ी बड़ी टेप रिकॉर्डर से शुरू हो गया, फिर छोटी फिर कैसेट जितनी हुई टेप रिकॉर्डर। बिल्कुल, उसके कोई कैसेट उसमें टम डाल के तो कानों को बॉक्स शॉप में लगा के तो फिर रहे हैं। इतना ज्यादा उस टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल होता था और इतना ज्यादा सुना जाता था कि तकरीबन तमाम लोग ही उसके आधे मिस्त्री खुद बन जाया करते थे। खुद खोल के ठीक ठुक करने, हेड साफ करना तो आम सी बात होती थी। आम बात होती थी। 1 रुपये के ऊपर पेट्रोल लगा है, साफ कर। ये भी बड़ा टैका होता था मोहल्ले में कि वो नुक्कर वाले नहीं है जो, उनके पास टेप है, उसमें 2 केस्टें चलती हैं। वाकई 2 केस्टें भी टेप रिकॉर्डर में पड़ जाती थी। अच्छा, ये भी याद नहीं रहता था कि फलां गाना जो है वो इसकी कैसेट की ए साइड पे या बी साइड पे, पूरी ए साइड सुनो फिर बी साइड उसको उल्टाओ, फिर पता चलता था। नहीं, उसके ऊपर कवर जो फिर बाद में लिस्ट अगर कवर गुम हो जाता तो फिर नहीं पता चलता था। फिर दूसरी स्टेज ये थी कि जो कैसेट के ऊपर स्टिकर लगा होता था उसके ऊपर भी गानों की तरतीब और तफसील लिखी हुई आ जाती। हाँ जी, या उसमें पेंसिल के साथ खुद भी निशान लगा देते। हाँ जी, ये वो वाली टेप रिकॉर्डर की हम बात कर रहे हैं जिसकी जगह अब सीडी प्लेयर्स और डीवीडी प्लेयर्स ने ले। फिर हमारे दौर में तो वो यूएसपी वगैरह आ गई। जी, आप तो फिर काले तवे से सीधा यूएसबी पे आए। हमने बीच में टेप रिकॉर्डर वाला दौर देखा। सर, चाय वाले होटल पे लोग पसंद का गाना सुनने के लिए चाय पीते थे कि वे अपना गाना पसंद का सुने। बिल्कुल ठीक बात है। ये भी उसने बड़ी टेप रखी होती थी चाय वाले ने, और उसके ऊपर लाल गुलाब डाला। ये थी माजी की चंद यादें। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, साथ रहिएगा। मुबारक हो जी आपको, एक मरतबा फिर पुलिस सारे महकमों को मात दे के नंबर 1 पहुंच गई है। बहुत शुक्रिया जनाब, क्रैप करो यार। वाह जी वाह, थैंक यू वेरी मच। ये होती है अप्रिसिएशन। अपने चैनल के ऊपर बुला के देखे, प्रोग्राम में अप्रिशिएट कर रहे हैं। पूछेंगे नहीं किस मामले में मात दे दी है सब महकमों को? ज़ाहिर है जुनैद साहब, ड्यूटी के हवाले से हम नंबर 1 आए होंगे क्योंकि हम बड़े ड्यूटीफुल लोग हैं। ओ जी बाकी सारे तो ड्यूटीफुल है ना, मैं ब्यूटीफुल भी हूँ। ये बंदा जेड़े ने साडी पोजीशन खराब करवाएगा। और भाईजान रिश्वत के मामले में सरे फहरिस्त आई है पुलिस एक मरतबा फिर। किनकी पुलिस?
हिंदुस्तान की पुलिस, अरे वो तो है, वाकई है रिश्वत जी वो। और भाई पाकिस्तान की पुलिस, आप लोग जुनैद साहब डोंट टेल मी, खुदा के लिए डोंट टेल मी। बड़ी हैरत हुई है जैसे आपको है। वाकई ये किसने कहा, किसने? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस रिश्वत सितानी में एक मर्तबा फिर सरे फहरिस्त आ गई है। ओए किदी मासी ने कहा जी? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। जनाब छोड़े ट्रांसपेरेंटी को, मैंने कहा है। ਤੇਰੀ ਇਹ ਜੁਰਤ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੂੰਗਾ ਹੈ। एक मिनट, ये धमकियां देने वाला काम कैमरे के सामने ना कीजिएगा। नहीं तो वो देखे तो सही, पुलिस को मुंह पे कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ रिश्वत। उसकी बिपता तो सुने ना जरा, क्या कह रहे क्या बिपता ये सुनाने आया जी? भाईजान गवर्नमेंट ने कहा है कि जो आदमी नया किराएदार रखेगा उसकी थाने में रिपोर्ट करवाए। हाँ। मैं रिपोर्ट कराने गया हूँ तो ये नहीं बैठे ये। अब पुट्टा साहब को थथा दूं। एक मिनट मोटा साहब सुनो तो सही। क्या कहा है? भुट्टा साहब करेंगे या मुझे 10,000 रुपए दो या दोपहर का खाना खिलाओ। मैंने कहा कौन 10,000 का दोपहर का खाना? मैंने कहा दोपहर खाने की हम ही भर ली। मैंने होटल में गया, 13,500 रुपए का बिल बन गया। क्या खा लिए? 11 डोंगे न्यारी के खा गया। इस पे आप देखें कि ये रिश्वतखोर कह रहे हैं पुलिस को, हालांकि वो बेचारा न्यारी खोर है, रिश्वतखोर नहीं है। और जुनैद साहब बिलीव मी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਚੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ 13,500 ਬਿੱਲ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਹਾਜੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 1,500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ जुनैद साहब उत्तो फुल तेज बारिश शुरू हो गई, एडी शदीद बारिश हुई है, बंदे को नहीं बढ़िया, कोई बंदा ही नहीं बढ़िया। 1,500 बंदे रोटी पक्की पई है तो बंदा को नहीं आया, मेहमान आए कोई नहीं। असि घर सामने थाना सी, मैं पुट्टा ते अपना कुल्फी निकल के गए उधर, ये तो खैर बेचारा नजर भी नहीं आया, किधरे पुट्टे दी लत पिछे लुके असि गए हाँ ते ओ बेचारा हाजी जुल्फकार बांगा देन लग पिया, रोन लग पिया, कहंदा ए बेड़ा गर्क हो गई चोरी। और 1,500 बंदे रोटी पका बैठा वहां को बंदे नहीं बने, बारिश शुरू हो गई, करंग की 1,500 बंदे रोटी कितने जग जाऊंगा। मैं को घबराओ ना, पुलिस किस दिन काम आएगी, 50 पुलिस कद लईए। लो जी मैं क्या भाई साहब तुसी एक साइड लो जाओ, मैं पुट्टे वाल वेख के ना सिर्फ इशारा कीता पुट्टे, और 1,500 बंदे दी रोटी पक्की है भाई। यकीन मनोगे तुसी आफ्टर 45 मिनट्स, पौने घंटे दे बाद सारा सालन गायब सी, नंगियां हड्डियां जमीन ते पईयां सन, बल्कि हड्डियां नाल ओ होई सी कि हड्डियां एक दूजे नूं घुटन डईयां सन। हाय हाय इसने ये जुल्फी साहब ने कोई मदद नहीं की आपकी खाने में? बेचारे ने मदद करनी है तो बड़ी अल्लाह का शुक्र है, ਇਹਦੀ जान बच गई। ये तो बड़ी देर बाद पता लगे है किधर, मैं ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ, मैं कहा कुल्फी किधर गई है। पहली बोटी किधरे मिक खाली चुक ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਕ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਸਿਰਫ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹਿਲਾਣ ਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਪੁੱਟਾ ਤੇ ਹੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ। ਨਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵੇਲੀਆਂ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਖਿਲ ਰਹੇ। ਪੁੱਟਾ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਲਚਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਇਹ ਖੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰਾਤਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। क्या फजूल कहानियां सुनाते जा रहे हैं मुझे। ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਜੇ। ਆ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਚਪਨ ਚ ਰੇਤ ਚ ਪੈਰ ਵਾੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। तरसेगा तीक छुट्टी नु, तरसेगा। ये किन किस्से कहानियों में उलझा दिए? सॉरी गल की होनी सी इस बच्चे दी वो अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उसके घर में नए किराएदार आए हैं, आपको रिपोर्ट करवाने गए हैं, आप उससे रिश्वत मांग रहे हो। ये वैसे गलत कह रहा है, आई एम सॉरी, ये गलत कह रहे हैं। ये मुंडे दे यकीन ना करो, ये फराडिया जे। क्या मतलब? ये वही तो नहीं होए जिन्हें घर च मशीनां भी लगियां रहियां तो इससे आओ। इन्हें उनको नवे परौने रख लेने। जुनैद साहब बिलीव मी, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ 6। ਉਹ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਲੰਘਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਟਕ ਟਕ ਜਿਕ ਜਿਕ ਟਕ ਟਕ ਜਿਕ ਜਿਕ ਟਕ ਟਕ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੇ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਗੁਲੂਕਾਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਦ। ਮਸਕੀਨ ਵਿਚਾਰਾ ਗੋਡੇ ਤੇ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ। ਉਹ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਹੈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿੱਕੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੁਰੀ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖੋਲੇ अरे एक मिनट जरा, इस तरह आप लोग बाज ही नहीं आते जरा, ये जरा जर्नल से बात करना। जनरल स्टोर वाला है। बस करो यार, क्या हो गया? थाने पुत्र तू जाने मेरे नाल तू मेरे नाल थाने जाना है तू इत्थे भर्ती नहीं हो जाना इन्हां कोल जेब च रखी बैठो भाई ਅਫਸਰੋ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜੇ तू करेगा भाई ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ कुछ हया कर कुछ शर्म कर किथे बैठे हैं ते केड़ी गल करनी है की तेरे मुंह नु हराम लगा ना मुरादा बदतमीज आदमी है ऐसा खान पीन दा शौकीन जे मैं करी सारा थाना लब बैठा मैं कोई किथे वे ਉਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਤੀਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਸਾ ਚੂਕ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਿਟਕ ਨਾ ਚੰਬੜੇ ਆ ਜੀ ये तो आप अपने एक एहलकार की बात कर रहे हैं ना, आपके जो ऑफिसर्स हैं उनकी अक्सरियत इसी तरह रिश्वत से चिमटी हुई है। ਲੋ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਹਿ ਤੇ ਘੋੜੇ ਕੋ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਵਾਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਲੱਕ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ अलमिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जुनैद मेरे जो ये इनकी सबसे बड़ी टेंशन थी ना वो सुना हल होने को जा रही है तुम्हारी सबसे बड़ी टेंशन हाँ जी क्या हील की लंबाई छोटी कर दी है, वाइपर का साइज कम कर दिया है या बेलन बनने बंद हो गए? बेचारे के साथ होती इतनी है कि इतना सारा पढ़ लिख के भी उसी दायरे के अंदर फंसा छोटी सोच है ना, छोटी सोच। और यार मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूँ कि हमारे महल्ले में इतने को बच्चे हैं इतने को बच्चे हैं अमान से मुझे लगता है मैं खरगोशा के महल्ले च रह और मैं यही सोचता 17 बच्चे तो तुम्हारे जो नेक्स्ट डोर नेबर है हाजी इम्तियाज साहब उनके हैं शायद। अरे नहीं यार पोतरे दोतरे मिला के सारे टोटल कुल उनके घर के जो बच्चे हैं ना वो मेरा हाल 27 हैं या 29 हैं एक दफा मैंने गिने थे 27 एक दफा 29 निकले थे चलो ज्यादा टेंशन ना लो पता लग जाएगा मर्दमशुमारी हो रही है ना 15 मार्च को पता लग जाएगा 27 का है 29 है तो 15 मार्च को उन्होंने सीधा हाजी इम्तियाज साहब के घर ही जाना है मर्दमशुमारी वालों ने। और यार यही मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे जब पता चला ना मर्दमशुमारी होने लगी है मैं कह यार हाजी साहब दा तो टोटल हो किसी नेक बंदे से शुरू करेंगे ना नहीं वैसे वाकई बड़ी हैरान कुन बात है मैं उन एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैं देख के ना कुछ घरों में बच्चों की तादाद को तो मैं सोचता हूँ कि यार हमारी तो मर्दमशुमारी हुए इंसानों की गिनती हुए बहुत अरसा हो गया हुआ 19 साल गुजर चुके हैं और कैसा बदकिस्मत मुल्क होगा हमारा कि जिसको 19 साल बाद इस बात का पता चलेगा कि उसके घर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद में 2.5 गुना इजाफा हो चुका है। 8 करोड़ थी उस वक्त जब गिनती हुई और अब देख लो 19 साल बाद गुमान यही है कि मेरा ख्याल है कि 22 करोड़ के लगभग होगी। हाँ जी और एक और बात का भी पता चलेगा जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है या इससे बड़ा लम्हा फिक्री है वो ये है कि हमारी जो शहरी और दही आबादी का जो तनासब है वो इस खित्ते में सबसे ज्यादा है शहरी आबादी। ये जो हम बार बार जिस बात पर मोतरज होते हैं ना कि हम सारी जो तरक्याती कामों का जो महवर मरकज है वो शहरों को बनाए हुए हैं, हम एक आम सी बात कह देते हैं जी 70 और 30% की रेशो है जनाब देहातों में 70% है लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त 60 और 40 ये वर्ल्ड बैंक की 2015 की रिपोर्ट है 39% आबादी जो है वो शहरों में आ चुकी है। लेकिन अभी जो ये सेंसस होगा ना ये 15 मार्च से जो शुरू हो रहा है तो पता चलेगा कि फैक्ट इससे भी ज्यादा भयानक है, शहरी आबादी में कहीं ज्यादा इजाफा हो। हाँ जी आधे से ज्यादा पिंड जो है वो शहरों में आ गए हुए हैं अब तो गड्डियों में से आवाजें आ रही होती हैं तेरे साईं मर जान। इससे ज्यादा प्रॉब्लम हुई ना शहर में तो थैले को फैमिली समेत गांव में भेज देंगे। बहुत अच्छे थैला बेचारा कितनी कुछ जगह घेरता है छोटे छोटे तो हैं खुद बेचारा इतना सा तो बच्चों का अंदाजा लगा लो ना। नहीं ऐसे जगह ज्यादा घेर
घेरता नहीं यार पूरी फैमिली तोते के छोटे पिंजरे में आ जाती है। वैसे हमें सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क के साथ क्या करते आ रहे हैं आज तक, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, और अब भी मुझे अल्लाह ना करे कि ये मर्दमशुमारी भी खटाई में पड़ जाए, क्योंकि कई जो कौम परस्त जमातें और तंजीमें हैं उन्होंने अदालत का रुख कर लिया है। वैसे ऐसे लोगों की बात भी सुनी जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए। जैसे एमक्यूएम का ये मौकफ है और उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है कि ये जो अभी खाना शुमारी की गई है इब्तदाई तौर पे, इसके मुताबिक कराची की आबादी में इतने अरसे के दौरान सिर्फ 100% इजाफा हुआ है, जबकि अंदरून सिंध के कई शहर ऐसे हैं जिसकी आबादी में 400 गुना तक इजाफे का इम्कान है और जाहिर किया जा रहा है। ये कैसे बात है, मतलब ये बिल्कुल गैर मंतकी सी बात लगती है। हाँ यार, अकल तुम इसलिए नहीं तुम्हारी तस्लीम करती कि छोटी है। ये सीधी सीधी बात है कि वहां पे पीपल्स पार्टी के हुकूमत है और पीपल्स पार्टी का अंदरून सिंध में योर है, वो अपनी आबादी को ज्यादा इजाफा दिखाएंगे और इधर लेकिन यार देखो, असल में यही तो मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि मर्दमशुमारी बुनियाद है और 19 साल से हम उस बुनियाद से महरूम है। कैसे पता है, घर में पता ही नहीं है लोगों को कि मेरे घर में कितने लोग रह रहे हैं, तो मैंने प्लानिंग खाक करनी है, वसाइल की तकसीम, तालीम, ये सब कुछ कैसे मैं कर पाऊंगा? गिनती पूरी होनी चाहिए जी, और कुछ नहीं तो अमान से सिर्फ दाइयों को फोन कर लें, वो बता देंगे। मैं बाद में हैरान होता हूं कि हम बात पे हम कई बातों में खास तौर पे गवर्नेंस के हवाले से, इंसाफ के हवाले से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल देते हैं। खुदा के बंदो जरा सोचो कि हजरत उमर वो शख्सियत थे जिन्होंने साइंटिफिक बुनियादों पे मर्दमशुमारी की बुनियाद रखी थी। उनके पेश नजर क्या था? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये चाहते थे कि जो वज़ाइफ की तकसीम है, जो सरकारी वज़ाइफ और ज़कात की तकसीम है, उसको मुनसिफाना बुनियादों पे उस्तवार किया जाए। और उनका बड़ा शानदार कॉल था, उन्होंने फरमाया था कि इस तरह मर्दमशुमारी की जाए, इस तरह मतलब साइंसी बुनियादों पर की जाए कि इराक के चरवाहे को भी घर बैठे वजीफा मिले, उसको यहां हमारे पास ना आना पड़े। वाह 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 यार, ईमान से किसी वक्त तो अक्ल दंग रह जाती है कि हजरत उमर ने जैसी एडमिनिस्ट्रेशन पैदा की। जबरदस्त। अच्छा जी, ये तो बताएं जुनैद साहब, ये जो मर्दमशुमारी है, ये गवर्नमेंट क्यों नहीं कराती? बच्चों को खुराक तकसीम करने पड़ते हैं या कपड़े देने पड़ते हैं? अगर तुम पिछले हिस्ट्री उठा के देखो, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, कभी सैलाब, कभी फौज की मसरूफियत, कभी कोई कोर्ट में चला गया और कभी कोई बहाना कभी कोई। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि ये मर्दमशुमारी हो जाए, ये तो होनी चाहिए। इसके बाद मेरा ख्याल है कि अहले इक़्तिदार को बैठ के ये सोचना चाहिए कि क्या इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो हमेशा मौखर होती चली आई है, उसका कोई मतबादल नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि दुनिया के कई मुल्क ये जो 5 या 10 साल के बाद मर्दमशुमारी है, इसकी जरूरत से मावरा हो चुके हैं, मुबर्रा हो चुके हैं। हम भी क्यों नहीं ये काम कर लेते? नादरा इज क्वाइट केपेबल ऑफ इट। नादरा बहुत मतलब उसका दुनिया के कई मुल्कों ने नादरा की जो सलाहियत है उसका इतराफ कर लिया हुआ है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि नादरा को ये जिम्मेदारी दी जाए, उसको एक पूरा जो इसका पैराफरनेलिया है वो दिया जाए कि उसके बाद मर्दमशुमारी की जरूरत ना पड़े आपको। मेरा टाइम है, ये एतजाज है संसार के साथ। क्यों? ये इतनी अच्छी बात मेरे ज़हन में क्यों नहीं आई? आके देखो ना, दुनिया की बहुत अच्छी बात है वाकई। ये तो मर्दमशुमारी में ड्रामा बाजी है पूरी। ये तो नादरा वाकई जो महकमा है इतना अच्छा बन गया हुआ, कंप्यूटराइज्ड हर चीज हो गई हुई, उसको कंप्यूटर पे टोटल करके बता देना चाहिए। लेकिन उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म आपको चाहिए कि लाहौर में रोजाना की बुनियाद पे, महाना बुनियादों पे कितने में नहीं मिलता। नहीं, वो बनाया जाना चाहिए कि लाहौर में कितने लोग आ रहे हैं, कराची में कितने लोग आ रहे हैं, गुजरांवाला से लाहौर कितने लोग शिफ्ट हुए हैं। तो ये मैकेनिज्म तरखान से बनवाते हैं खरादी से? थोड़ी सी मेहनत, इखलास, नियत का, और कोई मसला नहीं। नियत से बनवा तो वो तो फिर ना बढ़े आना। लेकिन ये गुजरांवाला से लाहौर मैंने मिसाल दी है, ये मैंने सुकूनत इख्तियार करने वालों के लिए दी है। जो स्टेज ड्रामा देखने आते हैं और जो लाहौर से चिड़े खाने जाते हैं वो शामिल नहीं है इसमें। हाय हाय हाय, इनको चाहिए अमान से फौरी तौर पे ये करवा के और नादरा के अंदर वो क्या बनवा लें, उसका पैराफरनेलिया। यार पहले मैकेनिज्म नहीं था, ऊपर से पैराफरनेलिया बना दिया। यार उधर जाके तो 2 बोतल पैराफरनेलिया जाके यार हमें लेना एक छोटा सा पैराफरनेलिया हमारे साथ।
जुनैद कल खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा था। शावर में एक दिन पहले मना लिया था उन्होंने। अच्छा नहीं यार, कल था आलमी दिन, एक दिन पहले कहाँ पे मना लिया? ईद वहाँ होती पे है। एक दिन पहले चांद नजर आ गया, उन्होंने मना लिया। और ये चांद पे नहीं मनाते यार खवातीन का आलमी दिन तो है ही चांद पे। पढ़े लिखे लोग बात निकाल लेते हैं। इतने पढ़े लिखे नहीं, नलायक है। इसको इतना नहीं पता कि सिर्फ ईद चंद वेख के मनाते। आलमी दिन का चांद ये तो बब्बर शेर आदमी है, तो छुट्टी भी चंद वेख के ही करता है। खवातीन के आलमी दिन के हवाले से मैं सोच रहा था यार कि जरूर बात करनी चाहिए, चूंकि हम 4 मर्द बैठे हुए हैं और जिया कली बेचारी इधर बैठे। तो लाइमन खवातीन के बारे में बात होनी चाहिए हमारे शो में भी। और मेरे तरफ से तो सिर्फ इतनी बात ही है कि खवातीन को ज्यादा से ज्यादा, जो अल्लाह के फजल से शुरू हो गया, तालीम जरूर दिलवानी चाहिए। बच्चियों को, बेटियों को तालीम जरूर दिलवाएं। खवातीन यहाँ की जब पढ़ लिख जाएगी ना, तो हुकूक उसको अपने खुद ही मिलते रहे। हाँ, क्योंकि हमने कहीं माशरती अक़दार की आड़ में, कहीं दीनी रिवायात की आड़ में, कहीं खाम खा बगैर मतलब फरसूदा किस्म के रस्म रिवाज की आड़ में खवातीन के बहुत सारे हकूक गसब किए हुए। कोई नई आड़ मिली तो हम खुद भी आड़ गए। क्या है आज की आपस की बात है कि खवातीन का आलमी दिन एक है, 365, बाकी 364 दिन मेरे और तुम्हारे। खुल के बात करो यार, 365 दिन खवातीन के, सीधी बात है यार। कनाडा की जो खतूने अव्वल है ना, वजीर आज़म की बेगम, उसने कल यही बात की। क्या? उसने तरस खाया अपने खामद पे और उसके वजह से पूरी दुनिया के मर्दों पे। उसने कहा कि मर्दों का भी आलमी दिन होना चाहिए, तेरा खवातीन का ही आलमी दिन मनाए जा रहे हैं। चलो पूरा दिन नहीं, आधा दिन ही मना ले मर्दों का यार। जिसी औरतां बेचारियां हकूक मंगदी ही नहीं, पैसे मंगते नहीं है। घर जाओ फिर पैसे, बाहर निकलो फिर पैसे। खवातीन अब मोहब्बत की जगह भी पैसे ही मांगती है। शौहर कहता है अपनी बीवी से कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, तुम्हारा हाथ अपने दिल पे लिखूं या हथेली पे लिखूं? बीवी कहती है चवले ना मारो, सीधा सीधा प्रॉपर्टी के कागजों पे लिखो। फिर तुम्हारे पल्ले तो एक मरला भी नहीं रहा। अच्छा जी, आबिद शेर अली कहते हैं बड़े जमींदार और सियासतदान बिजली चोरी में मुलव्वस निकले हैं, नाम लूंगा तो शोर मच जाएगा। बहुत अच्छे भाई आबिद, पहले कौन सा आपकी गुफ्तगू के ऊपर सन्नाटे छा जाते हैं? मतलब फजूल बोल के तो लड़ाई पवा देते हो, तेरी काम दी गल है ओदे ते इतराज करन दे। भाई जी ये 65, 66, 67, 68 साल जो हो गए ना मुल्क बने हुए, उसमें हर शख्स को पता चल चुका है कि बिजली चोरी कर रहे हैं और बड़े बड़े लोग ही कर रहे हैं। आपको वजारत इसीलिए दी थी और आपको शायद याद नहीं, आपने शुरू में बढ़ के भी यही मारी थी कि सबको नंगा कर दूंगा, सबको सामने ले आऊंगा, बिजली चोरी नहीं करने दूंगा। बहुत ढोल बजाए थे आपने। और अखीर मेरा ख्याल है 4 साल आपकी हुकूमत को हो गए हैं और 8 साल आपको वजीर बने हुए हो गए। आपके डबल इसलिए लगाए हैं कि आप इतना बोले हैं, लगता है 8-9 साल का बच्चा वजीर है। या जनाब उनका नाम लें या फिर उनसे बिल लें। है बेचारा वजीर, शक्ल वेखो ना आबिद शेर अली, लगता है बच्चा स्त्री बहुत अच्छी ठीक करता। और ऐसे लड़के को अगर दे देना स्त्री ठीक करने के लिए, तो जब लेने जाए ना तो वो कहता भाई जी इहदा मैं अंदरों कलेजी फिफरा ते ओजरी काट छड़ी है, हुण इहदे च कोले पा के ते स्त्री कर रहा। बिजली से नहीं चलनी है, बिजली वहां भी गायब है। वैसे आबिद शेर अली साहब, आपकी इस बात से मुझे अपने ताए के घर का एक वाकया याद आया। ताए के घर में रोजाना बिल्ली दूध पी जाती थी। वो बच्चे पूछे कि अब्बा जी आप जागते रहते हैं, आपको पता ही होगा ये कौन पी जाता है, किस वक्त ये आके दूध पी जाता है बिल्ला? ताया कहे मुझे पता है जेड़ा बिल्ला दूध पींदा, और मैं दस नहीं सकता, तो रौला पै जाने घर च। वो बच्चों को बताया ही ना ताया। एक दिन बच्चों ने क्या किया, रात का उन्होंने अलार्म लगा लिया अपने कमरे में। उठ के उन्होंने जब देखा बाहर तो ताया प्याला भर के दूध का बेच रस डबो डबो के खा रहा। सारे उन्हें शोर मचा दिया कि अब्बा जी तुसी ये तांगनी हो ना दसते, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा। ताया कहना तानू क्या ही ना जे तुहानू पता लग गया तो रौला पै जाना। सारे घर च रौला। खैर जोड़ शेर। इसलिए आबिद शेर अली साहब हजूर नाम बताए, वरना पता लगेगा कि बिले तुसी होई हो। अच्छा
अच्छा जी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है हुकूमती शोबाज ड्रामा तस्लीम नहीं, इमरान दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, सोचेंगे। शाबाश है, वो हाथ बटाएं सोचेंगे। इस तरह की लड़कियां मैसेज करती है ना, 200 का बैलेंस भेजे, अगर टाइम मिला तो फिर तुम्हें भी करूंगी फोन। जरदारी साहब, हयूरे वाला इमरान खान की इस वक्त फुल गुड्डी चढ़ी हुई है और आप कह रहे हैं कि हाथ वो पहले बढ़ाए फिर सोचेंगे। आपकी इस बात पर उसने चाइना का वो लकड़ी का खारिश वाला हाथ आगे कर देना है। उन्होंने कौन सा शर्मिंदा होना है, उन्होंने लकड़ी का हाथ पकड़ के खारिश करके वापस कर देना है। ये भी तुम्हारी भुल फहमी है कि वो वापस कर देंगे। पढ़ो जी अगली खबर। अच्छा जी, मुल्तान शहर से खबर है जहां शादी की अनोखी तकरीब हुई। दूल्हा शेर पर सवार होके सोने का सेहरा सजा के 15,000 बारातियों के साथ अपनी दुल्हनिया बिहाने चला गया। हाँ जी, मैंने वो देखी है खबर है, पिंजरे में शेर है और दूल्हा मियां ऊपर बैठे। क्या दिलेरी है तो आखिर दूल्हे की दिलेरी है ना, कितनी को होगी। ये बिल्कुल ऐसी दिलेरी उसने की है जैसी मियां बीवी के सामने करता है ना। पहले खुद मफूज होके फिर दिलेरी कर लेता है। ये देखो ना यार, हाय हाय, लोटो लोट हुआ पूरा बारात का सारा। यार पिंजरे में बंद है, वो शेर हो या बिल्ली हो, तुम्हें इससे क्या नॉनसेंस वो। हाँ जी, भावे सरबाला बंद कर लेना पिंजरे। सिर्फ बीवी को डराने या मुतासिर करने के लिए ये हरकत की है उसने। भाई जी, बीवी को अगर मुतासिर करना है तो साथ शेर लेके नहीं जाते, खुद शेर बनते। आगे बारात पहुंचे, बीवी शेर के पिंजरे का दरवाजा खोल के बड़े आराम से दूध का प्याला आगे रख, तुम तो ऊपर बैठे हो, ये लो मैं पुत्र तू ते दूध पी दिया, उतले मैं वेख लिया। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं अमीर तरीन लोगों ने कर्जे हड़प किए हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत अच्छे शहबाज शरीफ साहब, तुसी श्रीलंका के वजीर आला हो। हजूर आपकी हुकूमत है, आपने पूछना है, हुकूमतें पूछती हैं। हुकूमत का जो पैसा लुटा गया है तो फिर हुकूमत पूछे। आप तो सारे मामले में से ऐसे निकल जाते हैं जैसे बीवी खामद को मारने के लिए चिमटा उठाए तो बीच में से निकाह मुंडा नहीं आराम से निकल जाता। शहबाज शरीफ साहब की खूबी ये है कि एक टिकट में दो मजे ले रहे हैं। एक तरफ उंगली ला के हुकूमत कर रहे हैं और दूसरी तरफ हबीब जालब के शेर पढ़ के अपोजिशन का रोल भी प्ले कर रहे हैं। इस तरह के डबल पार्ट पहले ताया अलाउद्दीन किया करता था, अब चाचू शहबाज शरीफ करते। क्या बात है। ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।